तो अगेन वी कैन से दैट, अब मैं यहाँ पे बात करूं भाई, तो हम बात कर रहे थे यहाँ पे, नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट द pressure term. So if pressure is low, then it will favor to that side where volume will increase. Again, we know that pressure is inversely proportional to volume. Number 2 point, and when pressure is kept constant, this is third point, remember, from the pressure side, then volume is also constant. And now there is no shift either towards right or towards left. It will attain a state of equilibrium which will not seems to be dynamic. Okay, so this is the case when we say volume decrease. Okay, it means you are applying high pressure. When we say volume increase, it means you are applying low pressure. And when we say volume is constant, that means pressure is also here constant. Okay, under constant condition. Number third point, temperature. First, listen the concept. Concept is that what are the different, we can say, conditions under which Lee-Chatterjee principle is governed. Then we classify the same with examples. I know that this time you are not able to understand this, but when we are classifying examples, then we are capable to understand this. So wait a while. First, write the same points on the book, your notebook, and then compare with the examples. Have a patience. Okay. Number third point. When we increase temperature, the reaction favor forward. Where? Forward. In case of endothermic reaction. Which one? Endothermic reaction. Write this point also. Next point here is when we decrease temperature, it favor forward reaction when reaction is exothermic. Clear? So these are the 2 points regarding temperature. This is third factor. These are 2 points regarding temperature. Note down this point 2 also. And then fourth point. Fourth point is that addition of we can say inert gas. Addition of inert gas. Inert gas. For example, inert gas is argon, neon, etc. So remember, when number one case, when NP is equal to NR, you know what is NP and NR? Number of the molecules of the product and reactant, and both must be in gaseous state. Okay. When NP is equal to NR, then there is no effect. फिर आप चाहे गैस ऐड करो या नहीं करो, कोई इफेक्ट नहीं होगा भाई, ना तो इक्विलिब्रियम शिफ्ट करेगा, क्योंकि इस समय क्या होगा, इस समय हमारे पास या तो आपका प्रेशर कांस्टेंट होगा या तो वॉल्यूम कांस्टेंट होगा. नंबर बी पॉइंट इसी में, व्हेन NP इज नॉट इक्वल टू NR, उस केस में क्या होगा, उस केस में 2 कंडीशंस, इस केस में 2 कंडीशन. तो इसी की बात करते हैं आगे. So when NP is not equal to NR, number one case here, at constant pressure, इक्विलिब्रियम शिफ्ट करेगा, शिफ्ट टुवर्ड्स प्रेशर कांस्टेंट में लो प्रेशर है, टुवर्ड्स मोर वॉल्यूम साइड, जहां पे वॉल्यूम इंक्रीज होगा. और इसी में अगर NP इज नॉट इक्वल टू NR है, तब क्या होगा, अगर आप इफ यू केप्ट कांस्टेंट वॉल्यूम, अगर कांस्टेंट वॉल्यूम होगा तो फिर क्या होगा भाई हमारे पास, अगर कांस्टेंट वॉल्यूम हमारे पास है
देन उस केस में यहाँ पे अगेन नो इफेक्ट। बस ये क्वेश्चन आपका बहुत इंपॉर्टेंट है। तो कांस्टेंट वॉल्यूम के नो इफेक्ट होगा भी। ओके, नाउ आई एम रिपीटिंग द सेम। मैं सभी को एक बार लिख रहा हूं। कॉन्सेंट्रेशन का मतलब क्या है यहाँ पे? अगर रिएक्टेंट इंक्रीज करते हैं, ध्यान से लिखेगा, अगर इसने नहीं लिखा दोबारा लिखेगा, रिएक्टेंट इंक्रीज करते हैं तो रिएक्शन होगी फॉरवर्ड स्टेप में। अगर प्रोडक्ट इंक्रीज करता है तो रिएक्शन होगी बैकवर्ड स्टेप में। ठीक है, नंबर टू पॉइंट प्रेशर। हाई प्रेशर, okay, favor the shift towards volume side where volume decrease. Low pressure, favor that side where volume increase. Number 2 point. Number third point, temperature increase, favor forward in case of endothermic. Temperature decrease, favor forward in case of exothermic. Next point, inert gas case. NP is equal to NR, zero effect. Okay, again NP is not equal to NR, is equal to NR, zero effect. But this is zero effect only at constant V, and when NP is not equal to NR at constant P is constant, then there's a volume change, and volume change to that side which was higher volume. So these are the 4 important cases of the Lee-Chatter principle. Let us discuss now with one example. ध्यान से मैं example की बात करूं मैं. Suppose we prepare ammonia. Ammonia is NH3. ठीक है. We prepare ammonia, NH3. So we prepare ammonia by a method called Haber process. This is called Haber process. And what is process? That is when we react nitrogen gas with hydrogen gas, we get 2 times ammonia. This is the balanced form. Now look at the reaction. Nitrogen is gas, hydrogen is gas, ammonia is gas. First of all, if we suppose say this is 1 volume, this is 3 volume, this is 2 volume. Okay. So in order to prepare ammonia, listen carefully. In order to prepare ammonia, what should be the pressure? High pressure or low pressure? In order to proceed forward, the total volume on this side, that is this side, 1V, 3V is equal to 4V. And total volume on product side, that is equal to 2V. So this side is showing increase in volume. Reactant का volume increase कर रहा है. तो अगर reactant का volume increase कर रहा है तो मतलब आपका सिंपल सी बात है यहाँ पे, अगर मैं यहाँ पे बोल रहा हूँ कि reactant का volume increase कर रहा है, ओके, और प्रोडक्ट का वॉल्यूम क्या कर रहा है? डिक्रीज कर रहा है. अगर आपने फॉरवर्ड जाना है तो रिएक्टेंट का वॉल्यूम इंक्रीज कर रहा है, तो आप देख रहे हो डिक्रीज यहाँ पे हो रही है. डिक्रीज कहाँ पे? भी डिक्रीज हो रही है हमारे पास यहाँ पे प्रोडक्ट की तरफ से. तो आप यहाँ पे देखोगे कि इस केस में हमारे पास हम प्रोसीड करेंगे विच वन प्रेशर. यस, कौन सा प्रेशर यहाँ पे फेवर होगा भाई? हाई प्रेशर और लो प्रेशर. यस, तो भी मैंने कहा था कि अगर वॉल्यूम डिक्रीज करा है यहाँ पे, प्रेशर हाई तब होता है, लिसन नाउ,
प्रेशर हाई तब होता है और वो फेवर करता है फॉरवर्ड जब हमारे पास वॉल्यूम डिक्रीज करे। तो मतलब अगर मुझे प्रोडक्ट बनाने हैं, अगर मुझे अमोनिया बनाना है, तो आई हैव टू यूज हाई प्रेशर। अंडरस्टैंड द concept? I have to use the high pressure. If you understand, please note this point कि वॉल्यूम ऑफ दी, अगर वॉल्यूम ऑफ दी मतलब कि रिएक्टेंट और नंबर ऑफ मोल्स ऑफ रिएक्टेंट इंक्रीज हो जाएं, अगर नंबर ऑफ मोल्स ऑफ रिएक्टेंट इंक्रीज हो जाएं और प्रोडक्ट के क्या हो जाएं, कम हो जाएं, तो आपको फेवर करना फॉरवर्ड में, तो आप वहां पे देखिएगा कि हाई प्रेशर लगाना पड़ेगा आपको। ठीक है, तो अगर इस तरह से देख सकते हो, मतलब मान लो ये चीज हमने मेंशन की, तो यहाँ पे आपने हाई प्रेशर लगाया भी। अब सेम इसी रिएक्शन की बात करो मैं, when N2 react with thrice of H2 we get 2 times ammonia। तो भाई यहाँ पे क्या हुआ, वॉल्यूम डिक्रीज हुआ, हमने यूज किया हाई प्रेशर। अंडरस्टैंड? क्योंकि हम फॉरवर्ड जाना चाहते हैं, हमें बनाना क्या भाई, यहाँ पे हमें बनाना है अमोनिया, वी हैव टू फॉर्म अमोनिया। तो अमोनिया की फॉर्मुलेशन के लिए व्हाट इज फेवरेबल, दैट देयर इज अ डिक्रीज ऑफ द वॉल्यूम, हेंस वी इंक्रीज द प्रेशर। और डिक्रीजिंग मोल्स आल्सो, व्हेन आल्सो नंबर ऑफ मोल्स, अगर यहाँ पे मोल्स भी डिक्रीज करते हैं, अगर यहाँ पे मोल्स भी डिक्रीज करते हैं, तब भी प्रेशर को क्या करना पड़ता है, हाई करना पड़ता है, अगर फॉरवर्ड में जाना है तो, अगर मुझे फॉरवर्ड बनाना है तो। नेक्स्ट पॉइंट, दिस इज द पॉइंट रिगार्डिंग व्हाट, प्रेशर। नाउ नेक्स्ट पॉइंट रिगार्डिंग टेम्परेचर। Now next point regarding temperature. First of all, the reaction above is, the above reaction is what is exothermic. This reaction is exothermic. Okay, you have to identify what reaction is. If it is exothermic and it gives heat, delta H of the reaction is equal to minus 22 for, I am writing above, 22,400 calorie. Okay, this much of the heat is liberated, delta is equal to negative of, negative means exothermic. Now remember, reaction is exothermic, reaction is exothermic. So when reaction is exothermic and you want to proceed forward, you want to proceed forward, remember जब रिएक्शन हमारे पास एक्सोथर्मिक हो तो आपको टेम्परेचर को करना पड़ेगा डिक्रीज। ठीक है, तो याद रखो नेक्स्ट पॉइंट, एक्सोथर्मिक रिएक्शन को अगर फॉरवर्ड प्रोसीड करना है तो आपको टेम्परेचर को डिक्रीज करना पड़ेगा। नंबर 2 पॉइंट। ठीक है, हो गए 2 पॉइंट, तो 2 यहाँ पे एक्सप्लेन कर दिए, 2 यहाँ पे एक्सप्लेन कर दिए, और उसी प्रकार से कॉन्सेंट्रेशन भी यहाँ पे एक्सप्लेन कर दिया। ओके, प्रेशर भी यहाँ पे हो गया, टेम्परेचर भी हो गया। अब नेक्स्ट में बात करो यहाँ पे, सपोज आई एम टॉकिंग अबाउट वन मोर थिंग। सपोज हम क्या करते हैं, आइस को कन्वर्ट करते हैं वाटर में। सपोज वी कन्वर्ट आइस टू वाटर, सो व्हाट विल हैपन, द रिएक्शन इज व्हाट, एक्सो और एंडो, इट इज एंडोथर्मिक। ओके, दैट मीन्स हमने यहाँ पे आइस लिया, उसमें हीट ऐड की और क्या मिला, वाटर मिला लिक्विड स्टेट में, तो रिएक्शन इज एंडोथर्मिक। ऑब्वियस की बात है यहाँ पे, इसमें भी क्या भी H2O मॉलिक्यूल है, यहाँ पे भी क्या H2O मॉलिक्यूल है, बट ये लिक्विड स्टेट में, ये सॉलिड स्टेट में। अब मुझे यहाँ पे बताओ कि अगर रिएक्शन एंडोथर्मिक है और मुझे वाटर बनाना है, मुझे वाटर बनाना है, तो कौन सा टेम्परेचर यहाँ पे फेवरेबल होगा भाई, और कौन सा प्रेशर यहाँ पे फेवरेबल होगा, और इस केस में क्या करेंगे। तो अगर आप चाहते हो, इफ यू वांट टू increase, yeah, if you want to prepare water in liquid state, you have to increase temperature, टेम्परेचर आपको इंक्रीज करना पड़ेगा, यही तो बता रहे हम। क्योंकि एक्सो में टेम्परेचर डिक्रीज करना पड़ता है, यहीं से आपको याद रखना है। एंडो में टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे, तो अगर टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे तो वाटर बनेगा भाई। इफ यू इंक्रीज टेम्परेचर वाटर विल फॉर्म, ध्यान से सुनेगा भाई,
If you increase temperature, what will form? That means हर कोई एंडोथर्मिक रिएक्शन टेम्परेचर इंक्रीज करने पे फॉरवर्ड जाएगी यहाँ पे, ठीक है, क्योंकि हमें वाटर चाहिए। एक चीज आपको यहाँ से मेंशन होगी। दूसरी कंडीशन आप देखो भाई यहाँ पे, द सेकंड कंडीशन, दिस इज एक्सप्लेनेशन। अब सेकंड कंडीशन में यहाँ पे बता रहा हूँ, बहुत ध्यान से देखेगा। यू नो दैट सॉलिड का वॉल्यूम और लिक्विड का वॉल्यूम, किसका वॉल्यूम ज्यादा? सो इट इज ऑब्वियस दैट द वॉल्यूम ऑफ व्हाट वी कैन से सॉलिड एंड लिक्विड। तो भाई लिक्विड का वॉल्यूम जो हमारे पास है और आइस का वॉल्यूम यहाँ पे, तो भाई किसका वॉल्यूम मैक्सिमम होता है? बोलो भाई किसका वॉल्यूम मैक्सिमम होता है, सॉलिड का या आइस का? सॉरी, आइस का या वाटर का? सो ऑब्वियस सी बात है, यू हैव सीन दैट आइस के ऊपर कुछ स्पेसेस होती हैं। तो यहाँ पे केस थोड़ा उल्टा है। उल्टा मतलब यहाँ पे वॉल्यूम जो है वो आइस का ज्यादा है, ठीक है, और लिक्विड का कम है। तो अब सिंपल सी बात है, अगर लिक्विड का यहाँ पे वॉल्यूम कम है तो व्हाट वी नीड? तो अगर वॉल्यूम आगे देख रहे हैं वॉल्यूम कम हो रहा है तो हमें हाई प्रेशर की जरूरत पड़ेगी। हमें हाई प्रेशर की जरूरत भी पड़ सकती है भाई हमारे पास, ठीक है, अगर हमने किसको करना, आइस को मेल्ट करना है। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है यहाँ पे एक चीज। अब नेक्स्ट मैं आपको बता रहा हूँ इसी तरह से एक और एग्जांपल। सो आई एम राइटिंग वन मोर एग्जांपल। सपोज यू वांट टू कन्वर्ट वाटर इन लिक्विड स्टेट टू water in vapor phase. So what are conditions for the formation of water in vapor phase from the liquid state? That means you want to proceed reaction forward. So if you want to proceed reaction forward, what should be temperature, high or low, and what should be pressure, high or low? So first of all, we just say, अगर यहाँ पे भी बात करें, reaction is again endothermic. तो कोई भी एंडोथर्मिक रिएक्शन अगर हमें प्रोसीड करनी फॉरवर्ड तो हमें टेम्परेचर को इंक्रीज करना पड़ता है। ओके भाई, एक पॉइंट। सो दिस इज वन पॉइंट, अंडरस्टैंड। इसको मैं थोड़ा हाईलाइट कर रहा हूं। अब नेक्स्ट क्या, अभी हमारे पास नेक्स्ट बोलता है प्रेशर की टर्म में। सो अगर प्रेशर की टर्म करें, यू नो वेरी वेल। अब देखो यहाँ पे क्या होगा, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अगर आप देखो तो भाई दोनों में वॉल्यूम किसका ज्यादा, भाई इसका वॉल्यूम ज्यादा है या इसका वॉल्यूम ज्यादा है? तो वी नो दैट गैसेस का वॉल्यूम ज्यादा होता है। यहाँ पे वॉल्यूम बढ़ गया, तो अब वॉल्यूम बढ़ रहा है तो प्रेशर क्यों चाहिए कम? सो प्रेशर शुड बी लो, क्योंकि अगर लो प्रेशर होगा तभी हमारे पास फॉरवर्ड करेगी भी। फॉरवर्ड मतलब टुवर्ड्स वेपर जाएगी। दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। तो ये याद रखना, यहाँ पे हमें लो प्रेशर चाहिए भाई। व्हाट वी नीड, लो प्रेशर। तो ये जो सिस्टम है यहाँ पे जो बता रहा हूँ मैं आपको, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। नेक्स्ट पॉइंट एक और बताता हूँ आपको यहाँ पे। सो टुडे just I am giving the precise of the Leach-Chater principle by discussing examples. At least you understand what is concept, otherwise it cannot be understand at your own. आप इसको जितना भी करो नहीं होगा, इसको जब तक समझोगे नहीं अच्छे से। नेक्स्ट बता रहा हूँ मैं आपको। अब मैं बता रहा हूँ यहाँ पे फॉर्मेशन ऑफ, नो आई एम डिस्कसिंग फॉर्मेशन ऑफ NO। तो NO कहाँ से बनेगा भाई? बाय मिक्सिंग टू गैसेस, नाइट्रोजन प्लस ऑक्सीजन। So we balance this become twice times. Now tell me, ये भी गैस है, ये भी गैस है, ये भी गैस है, तो नंबर ऑफ रिएक्टेंट इज इक्वल टू नंबर ऑफ प्रोडक्ट। वो कैसे? एक मोल ये, एक मोल ये, 2 मोल और यहाँ पे 2 मोल, एक वॉल्यूम ये, एक वॉल्यूम ये, दिस इज आल्सो 2 वॉल्यूम। तो नंबर ऑफ दी रिएक्टेंट इज इक्वल टू प्रोडक्ट। When reactant is equal to product, one case, and you add suppose neon here, inert gas here, okay, then at constant volume there is zero change. This is one point, okay, note on this point. Number two, add neon at constant pressure. So if in this case, even at constant pressure, because equality is here, again there is zero impact.
ओके, दिस इज द केस दैट यू स्टडी। चाहे आप फिर इंक्रीज करो प्रेशर या कांस्टेंट को या वॉल्यूम कांस्टेंट करो, तो इस केस में मार्शल जीरो होगा भी हमारे पास, इसमें कोई इंपैक्ट नहीं होगा, क्योंकि बराबर मॉलिक्यूल है, यहाँ पे इक्वल अनइक्वल नहीं है। अनइक्वल होते हैं तो फिर प्रेशर पे क्या आता है, प्रेशर पे हमारे वॉल्यूम की तरफ ज्यादा होता है, जहाँ पे वॉल्यूम ज्यादा वहां पे हम बात करते हैं। नेक्स्ट देखो यहाँ पे, नेक्स्ट थिंग, नेक्स्ट देखिए टेम्परेचर का इंपैक्ट क्या होगा। बिफोर डिस्कसिंग टेम्परेचर वी शुड नो what reaction is. Is it exothermic or endothermic? First of all, the reaction is endothermic. That's why we are using heat. If reaction is endothermic and you want to proceed forward, so endothermic reaction hai, and you want to proceed forward, what should be temperature, increase or decrease? So you need a high temperature. You need a high temperature. So this is condition. And what should be the impact of pressure? भाई जब नंबर ऑफ मोल्स बराबर है, वॉल्यूम बराबर है, तो प्रेशर का यहाँ पे कोई रोल नहीं होगा। प्रेशर हैज नो रोल। सो दिस इज द वन ऑफ द एग्जांपल। नाउ आई एम गिविंग वन मोर एग्जांपल। फॉर एग्जांपल मैं अब एमोनिया को ब्रेक कर रहा हूं, ध्यान से देखिएगा, इनटू नाइट्रोजन प्लस थ्राइस ऑफ हाइड्रोजन। 2 वॉल्यूम से मैं 4 वॉल्यूम की तरफ आ रहा हूं। 4 वॉल्यूम मतलब 1 वॉल्यूम और 2 वॉल्यूम। तो सबसे पहले क्या हुआ, आप देख सकते हो वॉल्यूम इंक्रीज हुआ, वॉल्यूम इंक्रीज हुआ। तो अगर मुझे फॉरवर्ड जाना है तो क्या करना पड़ेगा, प्रेशर शुड बी डिक्रीज्ड। ओके, और अगर मैं यहाँ पे एमोनिया को ब्रेक कर रहा हूं तो रिएक्शन इज नाउ एंडोथर्मिक। अगर रिएक्शन हमारे पास एंडोथर्मिक है, फॉरवर्ड जाना है, तो टेम्परेचर शुड बी हाई। और यहाँ पे अगर मैं गैस ऐड कर रहा हूँ, इनर्ट गैस, जिसे मैंने ऐड किया आर्गन, तो फिर क्या होगा भाई, जब इनर्ट गैस हमारे पास है तो नंबर ऑफ रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स इज नॉट इक्वल टू नंबर ऑफ प्रोडक्ट मॉलिक्यूल्स। यहाँ पे 2 हैं, यहाँ पे 3 4 हैं। तो फिर क्या होता है भाई, आपने पढ़ा है, इसमें 2 केस होते हैं। एक केस, केस नंबर 1, अब ध्यान से लिखेगा यहाँ पे, केस नंबर 1, एट कांस्टेंट प्रेशर एट कांस्टेंट वॉल्यूम। तो कांस्टेंट वॉल्यूम का तो कोई रोल नहीं होगा, बट प्रेशर का जरूर होता है। प्रेशर के टर्म में ये शिफ्ट करेगा उस साइड जहां पे वॉल्यूम इंक्रीज होता है। ठीक है, तो इस टर्म में अगर आप प्रेशर कांस्टेंट रखते हो तो ये हमारे पास फॉरवर्ड ही प्रोसीड करेगा और टेम्परेचर को आप इंक्रीज करना पड़ेगा। दिस इज द बेसिस ऑफ दी वी कैन से लीचेटर प्रिंसिपल। नाउ क्वेश्चन इज दैट कि अगर मुझे सॉलिड से लिक्विड कन्वर्ट करना है, ठीक है, और इस केस में इसका वॉल्यूम V1 है, इसका वॉल्यूम V2 है, और बाय द वे V1 इज ग्रेटर देन V2। तो बताओ भाई क्या स्टेप होगा कि हमारे पास मेल्टिंग फेवर करे। मेल्टिंग फेवर करे मतलब फॉरवर्ड ही जा रही ना, तो व्हाट शुड बी टेम्परेचर एंड प्रेशर। प्रेशर क्या करना पड़ेगा, प्रेशर का बताओ, छोड़ो, और प्रेशर क्या होगा भाई, हाई और लो। एनी स्पॉन्सर्स? भाई जब भी मेल्टिंग ऑफ आइस होती है, सॉरी सॉलिड्स होता है, तो देयर इज वॉल्यूम इंक्रीज, और वॉल्यूम इंक्रीज हो गया तो प्रेशर क्यों चाहिए, लो होना चाहिए, प्रेशर शुड डिक्रीज, और तभी वो फेवर करेगा मेल्टिंग। बट आइस का केस नहीं है, आइस का केस थोड़ा डिफरेंट है। क्लियर? चलो भाई आगे करते हैं। तो ये था भाई आपका लीचेटर प्रिंसिपल। अच्छा, सबसे बड़ी बात इसमें अब कैटलिस्ट का रोल। तो मैंने पहले कहा है कि कैटलिस्ट का कोई भी रोल नहीं होता है, एक्सेप्ट ये क्या करता है, ये अल्टर करता है, इट अल्टर्स रेट ऑफ रिएक्शन। ठीक है, अल्टर में इंक्रीज भी कर सकता है या फिर डिक्रीज भी कर सकता है। सो दिस इज द रोल ऑफ द कैटलिस्ट। So thereby we finish the Lee-Chatter principle.
and with some examples. And you know that अगर मैं यहाँ पे एक सिंपल सी भी बात करूं कि अगर हम सोलबिलिटी की बात करते हैं, तो सोलबिलिटी की बात होती जब, तो अगर जैसे मैं बात करता हूँ शुगर की, यूरिया की, ये जो हैं ये सॉल्युबल होते हैं मोर इन हॉट वाटर देन इन कोल्ड। तो मतलब ये हुआ कि अगर ये हॉट वाटर में सॉल्युबल होते हैं, तो मतलब ये है यहाँ पे कि इन केस में जो रिएक्शन होती है वो क्या होती है हमारे पास यहाँ पे, एंडोथर्मिक होती है। क्योंकि मैं हॉट वाटर बताया, टेम्परेचर भी हाई, तो ये चीज हमारे पास रहती है यहाँ पे। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करते हैं अब ठीक है भाई, यहां तक एनी डाउट इसमें कुछ हमारे पास? यस गर्ल्स, कोई इसमें डाउट या नहीं समझ आ रहा है? एग्जाम्पल्स वो बता दिए मैंने, एग्जाम्पल काफी बता दिए मैंने, एग्जाम्पल को थोड़ा फोकस कीजिएगा यहाँ पे। और ली चैटर प्रिंसिपल बहुत इंपॉर्टेंट है। तो अब हम बात कर रहे हैं ली चैटर के बाद एक और उठाते हैं टॉपिक, एंड दैट इज, तो भाई इसमें अब हमारे पास हो गया, ला भी किया हमने, तो बैक जाते हैं और आज मैंने अपलोड किया ये वाला टॉपिक। इसमें हम देखते हैं हमने क्या क्या पढ़ना है। आज इसमें सिर्फ एक टॉपिक बताऊंगा खाली, वो है रिएक्शन कोफिशिएंट। ठीक है, कोशिएंट नॉट कोफिशिएंट, इट्स अ कोशिएंट। तो वो क्या चीज है हमारे पास कि उसको हम कैसे डिफाइन करते हैं। तो भाई सिंपल सी बात वहां पे है कि अगर आपको केसी आता ना, रिमेंबर केसी आता, तो वो है इक्विलिब्रियम कांस्टेंट एट we can say particular point, and what that point is, when the number of moles of reactant is equal to number of moles of product, or we can say concentration of reactant is equal to concentration of the product, or we can say reactant proceed to form product. बट अगर आपको पूछा जाता है यहाँ पे, सपोज आपको दिया जाता है कि व्हाट इज रिएक्शन कोशिएंट, अब इसका मतलब क्या होता है? देखो इसका सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इट इज आल्सो रेशियो। यू नो दैट Kc is equal to प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन अपॉन रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन, और Kc इज इक्वल टू 1 होगा जब हमारे पास रिएक्टेंट इज इक्वल टू प्रोडक्ट होगा भी हमारे पास। तो इस पॉइंट पे हम इसको Kc बोल सकते हैं भाई, Kc बोल सकते हैं, मतलब एक पर्टिकुलर कंसंट्रेशन जहां पे क्या हो, जहां पे इक्विलिब्रियम स्टेट आए भाई, इसको डिफाइन करते हैं। बट Qc क्या है, रिएक्शन कोशिएंट क्या है, Qc क्या है, इसको बोलते हैं कंसंट्रेशन कोशिएंट भी बोलते हैं हमारे पास। अब ये क्या है? सो इट इज रेशियो ऑफ प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट। क्लियर? एट एनी पॉइंट, एट व्हाट, एट एनी पॉइंट। एनी पॉइंट मतलब नॉट ओनली एट इक्विलिब्रियम, not only at equilibrium. For example, we are writing an example A of A plus B of B to give C of C plus D of D, D of D. Then QC is equal to प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन C की रेज पावर C, D की रेज पावर D और A की रेज पावर A and B की रेज पावर B. Similarly, you have last time read the equation of Kc, where I have taken the same example, but difference is that this is at any point of time, and that Kc is at equilibrium only. Okay, now next, when Qc is equal to 1, it is equal to Kc also, or we can say when Qc is equal to Kc, Kc, again there is a
This is possible at only equilibrium. Okay. Now the first case. If QC is equal to KC, that means you are talking about equilibrium both points of time. Number 2 point, when QC is greater than KC, when QC is greater than KC, then in this case, if QC is greater, product will form reactant. Understand? मतलब कहीं ना कहीं हमारे पास बैकवर्ड बोलेंगे, यहाँ पे बैकवर्ड फेवर होगा भाई हमारे पास. Number third point, when KC is greater than QC, then reactant convert to form product. मतलब we are saying forward direction फेवर हो रही है. ठीक है, तो अगर QC is equal to KC है तो रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के बीच में क्या चल रहा भाई? डायनामिक इक्विलिब्रियम चल रहा है हमारे पास. तो ये था भाई हमारे पास QC और KC. तो अभी के लिए फिलहाल इतना ही हमारे पास आज टॉपिक QC और KC से एंड करते हैं. नेक्स्ट टाइम वी प्रोसीड विद द KC एंड KP relationship, and then we do a numerical. Now I am ending this lecture here. Have a good day. Thank you, sir. Okay.